Hello class, today I am going to teach about the subject Business Studies or Business Organization, class 12, chapter 5th and its part 3rd. In this video we will discuss about meta receipt. Before discussing this topic, I would like to inform about the bill of lading. Bill of lading is a negotiable instrument or not? So this is a negotiable instrument, but we cannot say that this is a fully negotiable instrument. This question is asked in form of objective. कि bill of lading is a negotiable instrument or not? So this is a negotiable instrument. We can say that bill of lading is a negotiable instrument, but it is not a fully negotiable instrument. Then the main topic we will discuss meta receipt. Meta receipt is when the goods are loaded on the ship, captain of the ship, who is also called the meta, give the receipt of the goods. This receipt is called meta receipt. This receipt is called a meta receipt. In this receipt, the comment is made on the condition of packing. When the view of the meta packing of the good is satisfactory, he give clean receipt, and if the packing is a faulty, he give fault receipt. It means that this is a receipt, and this receipt issued by the captain of the ship, and this receipt is only based on the packing of the goods. If the packing of the good is satisfactory, then the clean receipt are issued. The captain of the ship issued clean receipt. Otherwise, in any fault for if any fault if the packing of the goods is faulty, then the captain of the ship issued a fault receipt. So I hope you can understand the meta receipt. The most important thing is it is issued by the captain of the ship. Secondly, this receipt is related to the packing of the goods. Now we will going to discuss about the method of payment in foreign trade. What is the procedure? What is the procedure of the payment related to the foreign trade? So it is a totally different procedures related to the inland transaction. जो हम लोग अपनी कंट्री में जो ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ का जो पेमेंट होता है, उससे ये जो फॉरेन ट्रेड का जो पेमेंट हम लोग जो भी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो बैंक इन्वॉल्व होता है वो सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक होना चाहिए और उसके ब्रांचेस दूसरी जगह होना चाहिए. उसके बहुत सारे रूल्स हैं. देन द फर्स्ट पॉइंट इज़ अ documentary bill. Documentary bill, in this method, export agent draw a bill on the exporter in which they direct the importer to pay some specific amount to the certain person or his order. When he attach with the bill, he copies bill of lading, insurance and other documents relating to the property in the goods and send them to the importer. Such bill along with the above mentioned document is called documentary bill. डॉक्यूमेंट्री बिल्स होती क्या है? डॉक्यूमेंट्री बिल्स जो है वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री बिल्स ये डायरेक्ट करते इम्पोर्टर टू पे सम स्पेसिफिक अमाउंट टू द सर्टेन पर्सन ऑन हिज ऑर्डर. जो भी इम्पोर्टर्स ने ऑर्डर किया है तो उसी के मतलब उस गुड्स से रिलेटेड जो भी उसने ऑर्डर किया उससे रिलेटेड उसका पेमेंट क्या है, और ही अटैच ऑल विद हिज बिग. और उसमें मतलब इस बिल में क्या क्या चीज़ अटैच है? बिल ऑफ लीडिंग होगा, इंश्योरेंस होगा और प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब जो ओनर होगा गुड्स का ओनर, जो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चीज़ किसको सेंड किया जाएगा? इम्पोर्टर्स को सेंड किया जाएगा. और यही चीज़ में डॉक्यूमेंट्री बिल्स में है. इसको दो तरह से जो है क्लासिफाई किया है. डॉक्यूमेंट्री बिल प्रिपेयर कौन करेगा, ड्रॉ कौन करेगा? एक्सपोर्ट एजेंट ड्रॉ करेंगे. एक्सपोर्ट एजेंट ड्रॉ अ बिल ऑन द इम्पोर्टर. तो यहाँ पर जो है
सबसे पहले कि ये ड्रॉ कौन करेगा डॉक्यूमेंट्री बिल्स, वो इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स करेगा। किसके डायरेक्शन पर? इम्पोर्टर्स के डायरेक्शन पर। किस तरह से रूल उसके ऑर्डर पर, जैसे इम्पोर्टर्स ने ऑर्डर किया उस हिसाब से बिल जो है ड्रॉ किया जाएगा। दूसरी चीज़ में कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होगी? इंश्योरेंस होगा, क्योंकि जो गुड्स सेंड किया जा रहा है वो हमारे दूसरी कंट्रीज़ में सेंड किया जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा? इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। कॉपी जो बिल ऑफ लीडिंग की है वो होगी, और जो उस गुड्स जो भेजा जा रहा है उससे की ओनरशिप से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारी चीज़ जो है सेंड की जाती है। इसको दो टाइप्स में बिल ऑफ लीडिंग में भी ऑफ टू टाइप्स। पहला हम टाइम बिल्स कह सकते हैं, दूसरा डिमांड बिल्स कह सकते हैं। तो जिसको हम दूसरे पर में ये कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। इन दिस system, time bill is written by the export agent. He attach all the documents related to the property and goods with the time bills and send them to his exchange bank with the direction that document relating to the property and goods should be transferred to the importer only when he accept the bill. पहली चीज़ टाइम बिल है क्या? जब कोई भी पेमेंट हमारा फ्यूचर में किया जा रहा है तो वो जो पेमेंट टाइम बिल्स हो। टाइम बिल कौन है इशू कर रहा है? एक्सपोर्ट एजेंट इशू करता है। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ टाइम बिल के साथ होगा? टाइम बिल के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, जो प्रॉपर्टी इन गुड्स से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसको सेंड कहाँ किया जाएगा? एक्सचेंज बैंक के किस उसमें सेंड किया जाएगा और उसके डायरेक्शन के हिसाब से। और ये ट्रांसफ़र किसको किया जाएगा? वो इम्पोर्टर्स को होगा। जब वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब इस टाइम बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, तब ये चीज़ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस भेजा जाए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट है, तो वो बिल डिमांड बिल है, जो डिमांड के ऊपर होता है। दिस बिल इज़ रिटन बाय द एक्सपोर्ट एजेंट with the direction that exchange bank will hand over the document relating to the property in the good to importer only on the payment of the demand bill. डिमांड बिल के पेमेंट पर के पेमेंट पर जो है ये इशू करेगा एक्सपोर्ट एजेंट, और किसके एक्सचेंज बैंक के साथ उसको जो है हैंड ओवर किया जाएगा, किसको? इम्पोर्टर्स को। बिल ऑन बैंक, bill on bank in this system, bill is drawn on bank in the place of the importer. Importer make ये यहाँ पे टाइम बिल्स के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट अ डिफिनेट फ्यूचर टाइम, ये फिक्स होगा कि इस टाइम तक तुम्हारे बिल्स पेमेंट हो जाना चाहिए। ऑर्डर अ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट एट द पर्टिकुलर टाइम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव ब्रॉट, जो वो खरीद रहा है उसके ऊपर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है ये डॉक्यूमेंट्स। दूसरा इसका एक डिफाइंड जो फ्यूचर डेट है उस पर पेमेंट करना, कौन पे करेगा? जो गुड्स या सर्विसेज खरीद रहा है। सेकेंड है बिल ऑन बैंक। बिल ऑन बैंक क्या है? देखो पेमेंट जो है ये जो हमारा फॉरेन ट्रेड का पेमेंट होता है वो बहुत तरह के मेथड से होता है। या तो डॉक्यूमेंट्री बिल्स का यूज़ हो रहा है, बिल ऑन बैंक है, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स है, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट या टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। तो ये सारे मेथड हैं। अब वो जब एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर जिस चीज़ से एग्री हो जाए, जिस चीज़ ज़रूरत होगी वो उस मेथड का यूज़ कर लेंगे। तो बिल ऑन बैंक क्या है? ये एक बिल जो है यहाँ पे इम्पोर्टर्स जिस भी कंट्री का जहाँ का रहेगा वहाँ से ये बिल ड्रॉ होगी, जो भी बिल बनाई जा रही है। फिर इम्पोर्टर अपने बैंकर के साथ मिल करके इस चीज़ को अरेंज करेगा और अपना नाम एक्सपोर्ट एजेंट्स को जिसने बिल ड्रॉ किया है वहाँ पर जो है जो बिल्स लिखता है कि हाँ इतनी बिल हुई, वो अपना नाम सेंड करेगा। फिर जो एक्सचेंज बैंक है वहाँ का नाम है, जो भी पैसा जो भी बिल्स होगी उसको सेंड करेगा। अब एक्सचेंज बैंक जो है वो उस पेमेंट को रिसीव करेगा। एक्सचेंज बैंक के थ्रू जो है एक्सपोर्टर्स जो है वो सारी बिल्स और अमाउंट को उसने रिसीव किया, और जो उस गुड्स से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स को वो एक्सचेंज बैंक के थ्रू इम्पोर्टर तक पहुँचा देगा।
तो ये बिल ऑन बैंक, तब बैंक के थ्रू ये सारा काम इस तरह से हो गया। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसमें जो है डॉक्यूमेंट्री बिल्स और ये सारी नहीं, पहले पेमेंट हुआ फिर जो है डॉक्यूमेंट्स को हैंड ओवर कर दिया गया इम्पोर्टर्स को। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, अब क्या है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर इसका क्या है कि इम्पोर्टर डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ इनवॉइस इन हिज बैंक एंड डायरेक्ट दैट इट शुड सेंड दिस अमाउंट टू इट्स ओवरसीज ब्रांच विद द डायरेक्शन टू पे दिस अमाउंट टू एक्सपोर्टर ऑन द रिसिट ऑफ द पेमेंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी इन गुड्स। यहाँ पर क्या है कि एक्सपोर्टर्स जो है वो जो इनवॉइस सेंड किया गया या दिया गया उस पर वो पेमेंट करेगा अपने बैंक को, और बैंक को इस चीज़ को डायरेक्ट कर देगा कि तुम अपने जो ओवरसीज़ ब्रांच है, जो तुम्हारी दूसरी कंट्री में इसकी ब्रांच है, तुम इसको इस चीज़ को वहाँ पर इस अमाउंट को वहाँ पे सेंड कर दो। तो यहाँ पे एक्सचेंज बैंक का रोल नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई भी अपने बैंक लिया वो बैंक होगा। अब वहाँ पर जो उसका जो दूसरा ब्रांच दूसरी कंट्रीज़ में है वो वहाँ पे वो अमाउंट चला जाएगा, एक्सपोर्टर्स जो उस पेमेंट को रिसीव कर लेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ओनरशिप ऑफ द गुड्स से रिलेटेड वो कहाँ दे देगा, ओवरसीज़ ब्रांच को हैंड ओवर कर देगा, और ओवरसीज़ ब्रांच के थ्रू इम्पोर्टर अपने डॉक्यूमेंट्स को ले लेगी। तो ये कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स से ये। फोर्थ है फॉरेन बैंक ड्राफ्ट। इन दिस सिस्टम इम्पोर्टर रिसीव द फॉरेन बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम हिज बैंक after depositing the amount of invoice, a bank charges send the draft to the exporter who deposit this draft in his bank। यहाँ पर क्या है कि एक्सपोर्टर्स जो है, यहाँ पर समझे एक्सपोर्टर्स जो है वो ड्राफ्ट जो है कहाँ पर सेंड करते थे, बैंक में दे देता है। अब इम्पोर्टर्स यहाँ पे एक्सपोर्टर ने सारे ड्राफ्ट को, जो भी इसने ड्राफ्ट बनाया था गुड्स से रिलेटेड, इसके जो सर्विसेज से रिलेटेड है, वो कहाँ सेंड कर दिया, अपने उसने बैंक को सेंड कर दिया। अब बैंक के थ्रू जो उसके दूसरे ब्रांचेस है वो जो एक्सपोर्टर के पास पहुँच गया, एक्सपोर्टर्स ने उस इनवॉइस का पेमेंट कर दिया। तो यही चीज़ पे लिखा हुआ, द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द बैंक ऑफ द इम्पोर्टर एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द एक्सपोर्टर। फिर जो है वो एक्सपोर्टर के अमाउंट से क्रेडिट कर लेगा, मतलब निकाल लेगा। यहाँ पे क्या है, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट मेन चीज़ यही है कि एक्सपोर्टर ड्राफ्ट सेंड करेगा इम्पोर्टर को, और इम्पोर्टर्स जो है उस इनवॉइस का पेमेंट करेगा। पेमेंट मतलब वो बैंक में जा कर के इनवॉइस जो भी उसको अमाउंट ऑफ द इनवॉइस उसका उस बैंक में जाकर उसको डिपॉजिट कर देगा। अब वहाँ से एक्सपोर्टर जो अपने बैंक से उस अमाउंट को रिसीव कर लेगा फ्रॉम द बैंक ऑफ द इनवॉइस, और फिर वो पैसा जो है बैंक ही जो है उस पैसे को क्रेडिट कर देगा एक्सपोर्टर के अकाउंट में। फिफ्थ पॉइंट है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। इन द केस ऑफ द प्रॉम्प्ट पेमेंट द फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस type of system, importer deposit the amount at the prevailing rate of exchange in his bank along with the bank charges and TT charges. Bank send the message to its overseas branch to make the payment to the exporter through the cablegraph. On receiving this message, bank make a payment to the exporter. यहाँ पर टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र क्या है कि यहाँ पर अगर ये फैसिलिटीज़ जो है जो भी प्रॉम्प्ट पेमेंट होगी उससे रिलेटेड है। पहले चीज़ एक्सपोर्टर्स जो है, इम्पोर्टर वो जो भी रेट चल रहा है, जो मौजूदा रेट है उसी रेट पर वो दूसरी कंट्रीज़ पर रेट जो है वो वहाँ का एक्सचेंज रेट दूसरा है, यहाँ पर दूसरा। जैसे अगर डॉलर में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर 71 या 72 रुपीज़ है, तो उस रेट पर अगर इंडिया के लोगों को डॉलर में तो 78 रुपीज़ के रेट से उन्होंने पेमेंट कर दिया। अब जो है बैंक यहाँ पर जो है वो अपना चार्जेस लेगा, टीटी चार्जेस लेगा, फिर बैंक जो है सेंड कर देगा मैसेज, जो भी उसके दूसरे ब्रांचेस एक्सपोर्टर की कंट्रीज़ में है वहाँ पे मैसेज सेंड कर लेगा, किसके थ्रू, कैबलीग्राम के थ्रू। फिर मैसेज को रिसीव करने के बाद बैंक मेक द पेमेंट टू द
एक्सपोर्टर, जो भी ओवरसीज़ ब्रांच है उसने मैसेज को रिसीव किया और फिर उसके बाद उसने पेमेंट कर दिया एक्सपोर्टर को। तो बहुत सारे मेथड्स है, जो भी हमारे इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को सुटेबल लगता है उस मेथड्स को वो यूज़ कर लेते हैं अपने पेमेंट को करने के लिए। मगर याद रखें इसमें एक्सचेंज बैंक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बैंक का रोल बहुत है और हर एक चीज़ बहुत ही क्लियर काम किया जाता है। जो भी क्रेडिट या जो भी इंटरनेशनल जो यूज़ होता है एक्सचेंज के लिए उसको बोला जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट कहीं पे भी वर्ड यूज़ हुआ हो तो ये याद रखिएगा कि वो फाइनेंशियली जो ट्रांजैक्शन होगा दो कंट्रीज़ के बीच में, वो लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इन सारे चीज़ों का यूज़ होता है। ये जनरली इनलैंड हमारी कंट्रीज़ में ही इसका यूज़ होगा। और लेटर ऑफ क्रेडिट जब दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगी, पेमेंट से रिलेटेड, वहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ होता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।